Okay. So yeah, I had uploaded a few videos. Did I upload the video of transcription? Okay, the transcription has not been uploaded. Okay, I'll just see that it's been uploaded. Anyways, so in a nutshell, we had seen how the replication is carried on and how the transcription is carried on. The replication is a process which is needed when a cell divides into two. Okay, and transcription is a process performed by DNA to to take part in the protein synthesis. That means when a protein has to be synthesized, the DNA which is carrying the code for that particular protein has to be, it has to be converted into some messenger by which the protein can be synthesized. And that we had seen the process of getting the DNA into a messenger, that is called RNA. So this process is called transcription. Only the script has been changed. The code has not been changed at all. But after the mRNA has been transcribed, the mRNA, if it is a prokaryote, it will simultaneously start the amino acid synthesis, the protein synthesis. The translation part initiates as soon as the transcription starts. So it is, it's called coupled transcription translation in prokaryotes, and in eukaryotes it is compartmentalized because the mRNA, which has been synthesized, which has been framed by DNA, is inside the nucleus, as eukaryote has a nucleus. So that mRNA, which has been framed from DNA, is, it is being carried out of the nuclear plasm through the nuclear membrane and through nuclear pore, and it comes out in the cytoplasm, where with the help of ribosomes and other mechanism like other components like tRNA, that is also RNA, which looks like T, so and which has got an ability to carry one amino acid at its one end, and the loop end has got a complementary codon, a complementary nuclear basis to the mRNA which has been synthesized. So for every amino acid, there is a specialized tRNA. So we were talking about the transcription portion. The transcription was in eukaryotes. The DNA transcribes itself into RNA, which carries the message, which carries the code from the DNA, and that code is being uh, taken out of the nucleoplasm, nuclear area, and it has been transported to the cytoplasm, where with the help of ribosomes and other components like tRNA, which looks like T, and which has got an ability to bind with an amino acid, and it has got the three nucleoside set, which has got a complementation with the mRNA, which has been synthesized for that particular gene. So every triplet combination, three nucleotide combinations, we have got an we have got a complementary sequence on the tRNA, and that we call as anticodon.
and the triplet combination in the messenger RNA is called a codon. So that the triplet codons have got anticodons on the tRNA, and with the help of the tRNA, the ribosome is a place, it is a site where the mRNA settles itself, and then with the help of these codons and with the help of anticodons on the tRNA, the amino acids are brought nearer at the ribosomal site. And it has got a very peculiar, because ये सिर्फ आपको समझना जरूरी है. I will be putting a video in which you will get to know exactly how these things are, amino acid sequences are synthesized. So that was the portion which is called translation. That means translation is a process, is a part of the protein synthesis which usually converts the code which has been brought from the DNA through RNA. That means from RNA, the code is being translated into amino acid sequences. But the tRNA brings closer the amino acids. When the amino acids come close, their peptidic activity and a peptidic bond is being created, and the peptone bond is called CONH. And with the help of those bonding, they make a chain of amino acids. यूजुअली देखा जाए तो ऐसा कहते हैं कि एक अमीनो एसिड जो है ऑन एवरेज 110 डाल्टन का होता है, कम ज़्यादा प्लस माइनस ऑन एवरेज 110 डाल्टन डे. तो वैसे हम ये 110 का फिगर याद रखिएगा. ये कभी कभी किसी एग्जामिनेशन में पूछते हैं कि इतना अमीनो एसिड्स हैं या फिर इतना अमीनो एसिड का सीक्वेंस का प्रोटीन है, तो वो कितने वेट का होगा. या फिर कहेंगे कि एक डीएनए है जो एक सम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, आप बोलेंगे कि 8000 नाइट्रोजन न्यूक्लियर बेस पेयर्स का एक डीएनए जीन है जो एक प्रोटीन फॉर्म करेगा. तो प्रोटीन फॉर्म करेगा तो आप कैसे पता लगाएंगे इसको. जैसे कि 8000 न्यूक्लियो बेस पेयर्स का एक डीएनए फ्रैगमेंट है 8000, राइट. तो उसमें से वो पूरा 8000 में से पूरा का पूरा जो सीक्वेंसेस हैं 8000 बेस पेयर्स का, वो मान लीजिए किसी जीन को कोड नहीं करता. उसमें बीच में इंट्रॉन्स है, जैसे मैंने कल या लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था. इंट्रॉन्स आर द सीक्वेंसेस विच नॉट मीन एनीथिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस. Either they are modified or changed according to the need after the mRNA is prepared. If it is done so after the mRNA is prepared and the corrections have been made, we call it post-transcriptional changes. And if it does not have a facility of doing these post-transcriptional changes, so the same sequence will carry forward, and the protein will be formed with those unwanted sequences which would code for some other amino acids. So after the protein has been synthesized, those unwanted amino acid sequences which have been incorporated in the protein, those will be removed by clearing that in Golgi complex. जिसको हम बोलते हैं Golgi complex में हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या फिर एंजाइम्स हैं, they become ready to get functional. तो वो इंट्रॉन्स से जो रिलेटेड जितने भी अमीनो एसिड्स थे वो निकाले जा सकते हैं. तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि हर अमीनो एसिड का एक एवरेज वेट है, दैट इज 110 डाल्टन. तभी जैसे मैंने कहा कि 8000 सीक्वेंसेस का एक डीएनए फ्रैगमेंट है जो कि एमआरएनए प्रिंट करता है, उसके बाद एमआरएनए से प्रोटीन बनता है. तभी मुझे बताइए कि यदि मैं ये कहूँ कि उसमें से सिर्फ 15% ही कोड है, बाकी सब जो 85% है वो नॉन रिलेवेंट कोड है, यानी कि वो इंट्रॉन है. तो 15% 8000 का कितना होगा. किसी नहीं मालूम. भाई 15% ऑफ 8000 कितना होता है. मेरी आवाज नहीं आ रही है. हेलो. हेलो. हाँ हाँ, मैं आवाज आ रही है.
तो मैंने ये पूछा कि सपोज करिए कि एक डीएनए फ्रैगमेंट है जो 8000 बेस पेयर्स का है, राइट। अब उस 8000 बेस पेयर्स में से मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 15% जो कोड है वही रिलेवेंट है किसी प्रोटीन को फ्रेम करने के लिए, बाकी 85% जो है वो इरेलेवेंट है, यानी कि वो इंट्रॉन्स हैं, इधर उधर डिस्पर्स्ड होंगे। उस पूरे 8000 के फ्रैगमेंट्स में कहीं ना कहीं वो इंट्रॉन्स इंटरफेयरिंग सीक्वेंसेस होंगे जो 85% है, यानी कि जो 15% है वही सिर्फ कोड है जो एक प्रोटीन बनाएगा। तो मैं वही पूछ रहा था कि 8000 का 15% कितना होता है? 1200। वेरी सिंपल, राइट। 1200 सीक्वेंसेस जो बेस पेयर्स जो हैं वही रिलेवेंट हैं एक प्रोटीन को फ्रेम करने के लिए। अभी आप मुझे बता सकते हैं कि मैं ये बोलूंगा कि ये 8000 सीक्वेंस के डीएनए फ्रैगमेंट से जो प्रोटीन बनेगा उसका वेट कितना होगा? सवाल मैंने क्या पूछा? एक 8000 बेस पेयर के डीएनए फ्रैगमेंट से जो भी प्रोटीन बनता है उसका वेट कितना होगा? मैंने आपको बताया एवरेज अमीनो एसिड का वेट 110 आप एज्यूम कर सकते हैं, कम ज्यादा होता है लेकिन आप 110 एज्यूम कर सकते हैं। तो अब ये सीधी सी बात है कि एक डीएनए पहले एमआरएनए बनाएगा, राइट। और मैंने एक कंडीशन और दी कि वहां शायद 15% ही रियल कोड है, बाकी 85% इंट्रॉन्स है जो कि काम की नहीं है। तो यानी कि 15% से ही अमीनो एसिड्स बनेंगे, अमीनो एसिड का सीक्वेंस सेट होगा, यानी 15% कितना हुआ? 1200 बेस पेयर। 1200 बेस पेयर से ही हमें एक प्रोटीन फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। अब आपको मालूम है कि बेस पेयर्स में से हर 3 सेपरेट कोडॉन्स होते हैं, तो हर 3 बेस पेयर एक किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, राइट। इसका मतलब कितना हो गया? 1200 बेस पेयर्स हैं जो कि प्रोटीन को कोड कर रहे हैं। उसमें से जब एमआरएनए बनेगा तो वो भी कितने 1200 बेस पेयर्स का एमआरएनए बनेगा। वो एमआरएनए 1200 बेस पेयर्स का एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस के बाहर आया, इंट्रॉन्स कट गए, स्प्लाइसिंग हो गई। अब वो जो एमआरएनए 1200 बेस पेयर जो कि एग्जैक्ट कोड है प्रोटीन्स के लिए, वो बाहर आकर राइबोसोम्स की मदद से अमीनो एसिड बनाएगा। तो हर एमआरएनए में 3 बेस पेयर जो है किसी एक एंटी कोडॉन जिसपे टीआरएनए अटैच होगा, यानी कि एक अमीनो एसिड लेके आएगा। इसका मतलब हर 3 बेस पेयर किसी एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तो इसका मतलब कितने अमीनो एसिड जुड़ेंगे साथ में? 1200 बेस पेयर्स है तो यस, हर 1200 बेस पेयर्स का जो एमआरएनए बन रहा था उससे ये अमीनो एसिड जुड़ते हैं साथ में, ट्रांसलेट होते हैं। तो हर 3 के लिए एक अमीनो एसिड है, तो 1200 बेस पेयर्स के लिए 400 अमीनो एसिड एक साथ जुड़ेंगे, राइट। तो 400 अमीनो एसिड एक साथ जुड़ेंगे, और हमने बताया कि हर एक अमीनो एसिड का एवरेज वेट 110 डाल्टन है। तो 400 अमीनो एसिड का कितना हो जाएगा? कितना होगा? यानी कि 44,000 को हम किलो बोल सकते हैं, तो 44 किलो डाल्टन, राइट। हाँ, तो ये बात समझ में आई ना आप लोगों को? जो बेस पेयर्स हैं उसमें से यदि हमने एक्सॉन की भी बात की, इंट्रॉन्स की भी बात की, हमने कहा कि एक्सॉन्स उसमें से 15% है, इंट्रॉन्स उसमें 85% है, या तो वो डीएनए एक पूरा 8000 बेस पेयर्स का एक एमआरएनए बनाएगा, उस एमआरएनए में से स्प्लाइसिंग होके, जो कि यूकैरियोट्स की कैपेबिलिटी है, प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग नहीं होता है, तो क्या होगा? यूकैरियोटिक है तो स्प्लाइस हो जाएंगे, यानी कि 85% पोर्शन जो है वो कट जाएगा, सिर्फ 1200 बेस पेयर्स का एक एमआरएनए फ्रेम हो जाएगा, एंड वो मॉडिफाइड या फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस के साथ वाला आरएनए अब वो साइटोप्लाज्म में आके 1200 के कोड से लेकर 400 अमीनो एसिड का एक प्रोटीन फ्रेम करेगा। ये बात, ये कंसेप्ट, ये सेंट्रल डॉगमा जो बोलते हैं ना, सेंट्रल प्रिंसिपल यही है इसका, हमारे जेनेटिक्स का, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का। सेंट्रल डॉगमा ये है कि डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है। तो उसमें सभी आप बात मैंने बताया कि यदि यूकैरियोटिक है तो वो आरएनए को ही हम मॉडिफाई कर लेते हैं, सिर्फ 1200 की जरूरत है, तो बाकी 85% यानी कि बाकी जितना भी बचता है कितना 6800 6800 बेस पेयर जो किसी काम के लिए थे उस जीन में, तो उसको हमने स्प्लाइस कर लिया, कट कर लिया, जहां भी डिस्ट्रीब्यूटेड है वो होके निकल गए। तो इस प्रकार से या तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस कर लेते हैं, या फिर मान लीजिए वो प्रोकैरियोटिक
रहा हो, प्रोकैरियोटिक एनिमल रहा हो या सेल रहा हो, तो उसमें कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली शुरू हो जाते हैं, एक के बाद एक शुरू हो जाते हैं, कपल रहते हैं। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ, एमआरएनए बनने लगा, यहाँ से फिर अमीनो एसिड जुड़ने शुरू हो जाएंगे, तो क्योंकि वो एक साथ खुले हुए रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, अब राइबोसोम का वो सब न्यूक्लिक मटेरियल भी साइटोप्लाज्म में रहता है। तो अभी जैसे क्या हुआ, जैसे ही ये यदि हम, हाँ, यदि मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए प्रोकैरियोटिक आर्बिट्ररी सिचुएशन में, ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आर्बिट्ररी सिचुएशन में प्रोकैरियोट में यदि मान लीजिए वो एबिलिटी है कि नहीं, स्प्लाइस करने की एबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा, वो 8000 बेस पेयर का वैसा ही एक एमआरएनए बन जाएगा, 8000 बेस पेयर्स का। अब वो 8000 के बेस पेयर्स का एमआरएनए जो है, उसके साथ साथ सीधे सीधे ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाएगा। यानी क्या होगा, 8000 का 1/3 कितना होता है, हर एक टीम के लिए कोडॉन है, हर 3 बेस पेयर्स का 8000 का 1/3 कितना हो जाएगा, 200 266 समथिंग, ऐसे हुआ 2660 2666 इतने क्या होंगे, अमीनो एसिड्स का एक प्रोटीन बन जाएगा। लेकिन वो प्रोटीन फंक्शनल नहीं होगा, बिकॉज प्रोटीन फंक्शनल प्रोटीन सिर्फ वो 1200 बेस पेयर्स वाला ही था। यानी कि अब क्या हो सकता है, जो प्रोटीन बन चुका था 2666 जो अमीनो एसिड का जो प्रोटीन फॉर्म हो गया था, वो फंक्शनल नहीं है। तो अब उसमें से यदि प्रोटीन बनने के बाद, यदि वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जाने के बाद वहां इनका मॉडिफिकेशन होता है, यानी कि उनको 400 अमीनो एसिड तक का लेके आना है, तो वो कट किए जा सकते हैं, क्लीव किए जा सकते हैं, जो इंट्रॉन्स के थ्रू बन चुके थे। लेकिन एक बात मैं बता दूं, प्रोकैरियोट्स में यूजुअली जीन्स के बीच में ऐसे इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक साथ होता है। तो यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन, ऐसे मॉडिफिकेशन या फिर ऐसे चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है, उन्होंने अपने इन्वॉल्व ही नहीं किया, बिकॉज वो प्रिमिटिव है वैसे भी देखा जाए तो जीन जितना है, 1200 का जीन है, तो 1200 का ही सीक्वेंस साथ में रहेगा। जैसे अभी आप थोड़े समय बाद पढ़ेंगे लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन भी वही चीज है कि ओपेरॉन मतलब, आप लोगों को शायद मैंने डिस्कस किया था, बात किए थे कि ओपेरॉन मतलब, ओपेरॉन किसी को मालूम है, ओपेरा ओपेरा एनीबॉडी नोज ओपेरा? नहीं मालूम? हेलो, ओपेरा मतलब मालूम है? ओपेरा को हम यूजुअली से हमारे इसमें कहते हैं डांस ड्रामा। वैसे एक वेस्टर्न कल्चर में ये है जिसमें डांस भी होता है, एक स्टोरी भी रहती है और एक सिंगिंग भी रहती है, मतलब तीनों चीजें साथ में चलती हैं। अ स्टोरी टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ डांस एंड म्यूजिक। तो वो एक यूजुअली स्टोरीज को सुनाया जाता है, तो फिर डांस भी होता है, सिंगिंग भी होती है और एक स्टोरी भी ड्रामाटाइज किया जाता है। तो ये सब साथ में होते हैं। तो वैसे ही कहा जाए, हम जब लैक ओपेरॉन या फिर लैक्टोज ओपेरॉन कहते हैं, तो ओपेरॉन मतलब, ओपेरॉन सिंगुलर वर्ड है ओपेरा का। तो ओपेरॉन जो है वो ये बताता है कि एक साथ कई सारे जीन्स ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट हो जाते हैं। अब लैक्टोज वाली जो लैक ओपेरॉन जो है, वो एक प्रकार का रेगुलेशन है। अब देखा जाए तो हमारे ऐसे बहुत से प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी को बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं, राइट? प्रोटीन्स को वैसे भी हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। यानी कि ये प्रोटीन जब तक बनेंगे नहीं, जब तक हमारा डीएनए उसको फ्रेम नहीं करेगा, तब तक वो हमारे प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं बनेंगे, हमारा स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा। जैसे कि हम हर स्ट्रक्चर को खड़ा कर, बॉडी हमारी पूरी बन गई है, इसमें ढेर सारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स लगे होंगे, इन सब के लिए भी कोई ना कोई जीन्स रिस्पॉन्सिबल होगा। और वो जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स हैं, वो यूजुअली अपने आप को ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट करेंगे तभी। तो वैसे देखा जाए तो ऐसे जितने भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं जिसके कारण बॉडी फ्रेम होती है, बॉडी ऑर्गेनाइज होती है टिश्यू सेलुलर या फिर ऑर्गन लेवल पे, ये प्रोटीन्स पूरे, यदि हमने इनके जीन्स को यदि काउंट करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि वो मेरे ख्याल से शायद एक 2%, सिर्फ 2% ही अपने डीएनए, फुल जो डीएनए हमारे पास जीनोम प्रेजेंट है, उसमें से सिर्फ 2% ही जीन्स हैं जो कि सिर्फ हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाते हैं। जहाँ भी मतलब प्रोटीन्स की जरूरत है, जिससे हमारे सेल टिश्यू या ऑर्गन लेवल पे कुछ फ्रेम हो रहा है या बन रहा है या डेवलप हो रहा है, तो उसको सिर्फ बनाने के लिए सिर्फ 2% के जीन्स ही अवेलेबल है। बाकी सब जो 98%
ऑलमोस्ट 98% के जो जीन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसी न किसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, सम वे और किसी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए, या फिर किसी और तरीके से किसी जीन को रेगुलेट करने के लिए। अब हमने ट्रांसक्रिप्शन में एक चीज़ और देखी थी कि हर जब डीएनए का फ्रैगमेंट एक अन्य फ्रैगमेंट फ्रेम करता है या फिर ट्रांसक्राइब करता है, तो उसे एक ऐसी जगह की जरूरत पड़ती है जहाँ से वो स्टार्ट करे, कि उसे पता चले कि यहाँ से जीन शुरुआत हो रही है, यहाँ से जीन की शुरुआत है, और एक और जगह उसको पता लगे कि यहाँ पे जीन खत्म हो रहा है। इसके लिए हमने देखा था कि प्रोमोटर नाम की, आप मैंने आपको शायद वो टेक्स्ट डाल दिया था मैंने, टेक्स्ट में आप पढ़ें समझ में आएगा कि प्रोमोटर रीजन होता है। तो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज यानी कि डीएनए से आरएनए जब बनाया जा रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम यूज होगा, वो यूजुअली प्रोमोटर रीजन को जाके बाइंड करता है। फिर प्रमोटर के बाद में ऑपरेटर रीजन भी होते हैं, यानी कि वो शुरुआत करते हैं किसी भी जीन को खुलने के लिए, डीएनए में खुलने के लिए, उसके बाद उससे एक आरएनए सिंथेसाइज करने के लिए। तो ये जो पोर्शन, जैसे कि हम उसमें रेप्लिकेशन देखिए प्राइमर अटैच होता है, प्राइमर के कारण वो भी कहाँ होता है, ओरिजिनल रेप्लिकेशन या फिर ओरिसी नाम की जगह है वहां से, या फिर बॉक्सेस हैं, प्रिजनर बॉक्स जो हमने पढ़ा था, जो पढ़ा नहीं मतलब हमने जस्ट डिस्कस किया है। तो वो जो प्रिजनर बॉक्स या ऑर्गेनस बॉक्सेस होते हैं जहाँ पे कंसेंसस सीक्वेंसेस होते हैं, जिसके बेसिस पे पॉलीमरेज उसको यूटिलाइज करता है और होल्ड करता है, फिर देन इट रेप्लिकेट्स। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन वाली केस में क्या है कि वो प्रोमोटर रीजन, मतलब हर जीन के पहले एक रीजन जरूर होगा जहाँ पे पॉलीमरेज अपने आरएनए पॉलीमरेज अपने आप को अटैच करेगा और फिर बाद में वो ट्रांसक्राइब करेगा एक एमआरएनए को। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, हमें हमेशा प्रोमोटर की जरूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब लैक ओपेरॉन में तीन, सपोज करिए लैक है, लैक्टोज के लिए तीन ऐसे एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिनको एक साथ ट्रांसक्राइब करती है बॉडी, क्योंकि जब तक हम लैक्टोज फीड नहीं करते हमारे पास उस एंजाइम की जरूरत नहीं है, उस एंजाइम की हमारे पास जरूरत नहीं है। तो यूजुअली क्या होता है कि जब बचपन, हम छोटेपन में जब हम सिर्फ दूध ही हमारा स्टेपल फूड हुआ करता था, हम उसके बेसिस पे हम पूरी एनर्जी लेते थे, कार्बोहाइड्रेट भी लेते थे, प्रोटीन भी लेते थे, फैट्स भी मिलता था। मिल्क, तो मिल्क में होता है लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन है, उसका शुगर पोर्शन है, जो कि एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड मतलब उसमें दो मोनोमर्स हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं। कौन कौन से हैं? एक ग्लूकोज है और एक गैलेक्टोज है, तो उससे वो लैक्टोज नाम पड़ा उसका। जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज भी वैसे ही है, हम शुगर जो हम खाते हैं वो यूजुअली डाइसैकेराइड है ना। तो ये जो लैक्टोज है उसमें दो कार्बोहाइड्रेट मोनोमर्स हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो इसमें ग्लूकोज को तो डाइजेस्ट करने के बाद हमारे पास आसान तरीका है, लेकिन लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक करने के लिए जिस मेटाबॉलिज्म की जरूरत है, उसमें तीन अलग अलग टाइप के हमारे पास एंजाइम्स यूज होते हैं। वो तीनों एंजाइम्स की जरूरत है हमें सिंथेसाइज करने की, क्योंकि बचपन में जब हम सिर्फ मिल्क पीते थे तब हमें ये काफी बहुतायत रूप से जरूरत पड़ती थी। और क्या होता था कि हर बार वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो तीन एंजाइम्स अलग अलग लगते हैं, अलग अलग फेजेस में मेटाबॉलिज्म में, उनको सिंथेसाइज करना होता था। तो ये जो पोर्शन है वो जीन्स देखा गया है कि जब भी लैक्टोज आएगा तो तीन एंजाइम जरूरत पड़ेंगे। तो अभी मान लीजिए एक एंजाइम को बनाने का एक जीन कहीं पे है, दूसरे का कहीं और पे है, तीसरे कहीं और पे है, तो हर बार हर जीन के सामने एक प्रोमोटर लगेगा, वो प्रोमोटर से वो जीन बनेगा, फिर बाद में उसको तीन दूसरी जगह जाके फिर उसको वहां पे भी स्टिमुलेट करना होगा। यूजुअली लैक्टोज का प्रेजेंस इसको स्टिमुलेट करता है ना। तो एक जीन यहाँ पे, एक जीन दूसरी जगह, तीसरा जीन कहीं और है, तो हर एक जीन के सामने में ट्रांसक्राइब होना है, मान लीजिए उससे एमआरएनए बनना है, तो उसके पास एक ऑपरेटर होना चाहिए, ऑपरेटर सीक्वेंस जो कि उस जीन के पहले होता है, जैसे मैंने कहा था, जिसको हम बोलते हैं कि अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में होगा, माइनस वाले हम उसे डिनोट करते हैं। तो अपस्ट्रीम में एक प्रमोटर होगा, यानी कि हर तीन जीन्स के लिए, हर तीन एंजाइम के लिए तीन जीन्स हैं, वो तीनों जीन्स के लिए हर एक जगह एक प्रोमोटर प्रोमोटर लगेंगे, तीन प्रोमोटर लगेंगे। हर बार पॉलीमरेज को जाके एक जगह सिंथेसाइज करना होगा। मान लीजिए इनके दूसरी जीन के पास में कुछ अड़चन आ गई, some difficulty in transcribing the second gene, फिर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म कंप्लीट नहीं होगा। तो वी नीड, इट इज अ काइंड ऑफ एवोल्यूशन, दिस इज अ काइंड ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन। ये तीनों जीन्स हमारे पास एक साथ बनने चाहिए, ताकि एक के पीछे एक बनना चाहिए, ताकि क्या है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म था लैक्टोज का वो कंप्लीट हो जाए, है ना, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। तो फॉर दैट दीज ऑल थ्री जीन्स आर फाउंड एट वन प्लेस, एक ही जगह पे मिलते हैं, एक के पीछे एक वो जीन्स लगे रहते हैं, और उन तीनों के सामने एक प्रमोटर होता है, जो एक ही प्रमोटर काफी है, जो तीनों जीन्स को एक साथ ट्रांसक्राइब करने में मदद करता है। दिस इज व्हाट रेगुलेशन इज। वन प्रमोटर इज रेगुलेटिंग, वन प्रमोटर इज रेगुलेटिंग, one promoter is regulating
how many? 3 genes. With the help of only one promoter, one mRNA will be, transcribed for all the 3 genes. And then there will be like, this is sufficiently वो lactose यदि खत्म होने लगेगा. Lactose एक stimulating agent है, एक triggering agent है. जब तक lactose उस जीन से अटैच नहीं हो पाता, तब तक वो RNA polymerase लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में लगने वाले 3 जीन्स को ट्रांसक्राइब नहीं करता है. लेकिन जैसे ही वो ट्रांसक्राइब करेगा, वो एंजाइम लैक्टोज को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, तो लैक्टोज खत्म होना शुरू हो जाएगा. तो वंस द लैक्टोज नहीं है, तो फिर बाद में वो हमेशा फिर से उनके जो ट्रांसक्राइब हो रहा था वो पोर्शन फिर रुक जाएगा, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज. तो ये लैक्टोज का प्रेजेंस और एब्सेंस जो है वो रेगुलेट करता है उन जीन्स के एक्सप्रेशन को. एक्सप्रेशन मतलब उन जीन्स से प्रोटीन बनना. एक जीन से प्रोटीन बनने को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन. वो दो फेजेस में होता है, एक ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसलेशन. यही सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल प्रिंसिपल भी है, राइट. तो ये एक साथ ट्रांसक्राइब किए जाते हैं, एक सिंगल एमआरएनए बनता है, और वो सिंगल एमआरएनए फटाफट वो तीनों एंजाइम्स को एक के बाद सिंथेसाइज करता है. जो एक प्रोटीन बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा, जो क्लीव हो जाएंगे 3 अलग अलग एंजाइम्स में, और वो लैक्टोज को मेटाबोलाइज कर पाते हैं. ऐसे एक और ओपेरॉन है जो ट्रिप्ट ओपेरॉन बोलते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा. फिलहाल आज के लिए इतना ही, और ट्रांसलेशन हम फिर से देखेंगे एक बार डिटेल में. लेकिन अभी मैं जो रिलेटेड ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड जितना कुछ था उतना मैंने अभी कवर किया. हमको सबसे मैंने हमेशा कहा कि आप जब भी पढ़ेंगे, मैं जो आपको नोट्स दे रहा हूँ उसमें भी आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों का डिस्कशन के साथ साथ चलूंगा. तो आपने रेप्लिकेशन भी दोनों सेल्स में देख लिया एंड उसको ट्रांसक्रिप्शन भी दोनों सेल्स में देख लिया है. अभी मैं एक काम करूंगा, आप लोग को क्लिप डालता हूँ, द क्लब विच शोज हाउ द ट्रांसक्रिप्शन occurs एंड ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ ही दिखा जाते हैं वैसे वो. उसके बाद देन हाउ द ट्रांसलेशन का भी मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ, तो पढ़िएगा. फिर हम ट्रांसलेशन को एक बार अच्छे से कि कैसे वो राइबोसोम्स के साथ में कहाँ से कौन सा एंट्री पॉइंट है, कहाँ पे एमआरएनए सेटल होता है, कौन से टाइप के राइबोसोम्स हैं, किस टाइप के राइबोसोम्स में वो पकड़े जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में कौन से टाइप के राइबोसोम्स हैं, और यूकैरियोट्स में कौन से टाइप के राइबोसोम्स हैं, किस साइड से वो रीड करना शुरू करेगा, कौन से साइड से रीड करना शुरू करेगा. सीधी सी बात है, 5 to 3 डायरेक्शन में रीड होगा. तो वो कैसे होगा, कैसे टीआरएनए इतने सारे कॉम्बिनेशंस बनाता है, कितने सारे टीआरएनए होंगे, और वो कैसे आते हैं. फिर यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा चीज आती है, उसको हम बोलते हैं वॉबलिंग. कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि AUG ऐसे नाम का कोडॉन है, उससे एक AUG यानी कि जो एंटी कोडॉन आएगा उसके लिए UAC ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन उससे अटैच होने आएगा. ये जो अटैचमेंट जो है, ये कभी कभी क्या होता है AUG, तो हमारे पास UAC होना चाहिए था, तो UAC की जगह UUC भी आ सकता है. एक जो बीच का जो है वो कभी कभी मैच नहीं करता. तो ऐसे समय क्या होता है कि ये जो टीआरएनए आके इसको अटैच हो रहा है, वो ढंग से अटैच नहीं हो पाता. 2 अटैच हो रहा है, तीसरा अटैच नहीं हो रहा, तो ये वॉबल करता है. वॉबलिंग मतलब बराबर फिट नहीं हो पा रहा, लेकिन वॉबल कर रहा है, लेकिन इट्स नॉट अ रॉन्ग वन. कभी कभी ऐसा होता है. तो वॉबलिंग कभी कभी फेवर करता है टू कंप्लीट द प्रोटीन सिंथेसिस. एक अमीनो एसिड, एक कोडॉन जो है मैच नहीं कर रहा है, इधर मिडिल वाला या फिर इस तरफ वाला. सपोज करिए मिडिल वाला नहीं कर रहा है, तो यूजुअली वो बाइंड नहीं हो पाएंगे बराबर. लेकिन कोई एक एंड वाला मान लो मैच नहीं कर रहा, तो कई बार क्या होता है ये दोनों मैच कर जाते हैं, तीसरा मैच नहीं कर पाता. तो ये टीआरएनए यहाँ पे कंटिन्यूसली वॉबल करता है. ये सिंपल लिटरल मीनिंग है वॉबलिंग. लेकिन वो यूजुअली ये क्यों वॉबलिंग होती है, किसके बीच में वॉबलिंग होती है, इसके भी रीजन हैं अपने अपने, हर जगह नहीं होता. तो वो हम देखेंगे बाद में, और इसके कारण क्या क्या डिफिकल्टीज या फिर प्रॉब्लम्स आती हैं. तो मैंने इसीलिए ट्रांसलेशन को अभी लिया नहीं. हम अगर एप्लीकेशन समझ चुके हैं और ट्रांसक्रिप्शन समझ चुके हैं, और लैक ऑपरेंट का ट्रांसक्रिप्शन पोर्शन भी हम समझने की कोशिश की. अभी ट्रांसलेशन वाला पोर्शन बचा हुआ है कि राइबोसोम्स कितने टाइप्स क्या है क्या नहीं, वो we will go to we will discuss next time. Okay, that's all for today, and आज के बस इतना ही. ठीक है, ओके. बहुत कम लोग आते हैं, आप लोग पता नहीं बाकी सब कहाँ जाते हैं. एनीवेज, see you tomorrow. Okay.